used to live in a way. Agrarian society, they started living from there. Mass industrialization happened in the 18th century and 19th century. Mid 19th century, the information technology age started, and currently the phase is of wisdom, where we are trying to develop machines who can think, which can work as human beings. Okay, so in the entire phase of development, one thing which was common was the development was based on human efforts. The development was based on how creatively we can do our work, and slowly the society was shifted to a upper grade society. Some hunters and gatherers, the agrarian society was a little bit was in a little bit comfortable condition. The industrial society was in a more comfortable condition. Information technology age, the world become flat. Okay, we all get connected in a global village, and currently we are working with wisdom. So this essence of creativity can be seen in the entire development phase of the human culture. Now, this creativity, when it is clubbed with commercialization, it becomes innovation. I will explain it also, but we will start with the definition of innovation. The word innovation has been derived from a Latin word, which means Latin word innovare, which means to renew. ठीक है, we are talking about renewing the existing practice. ठीक है, now how we are going to renew it is much important than what to renew. Okay, see, I have taken some good examples, but before starting the example, but the problem which is faced by our student is everyone wants to invent something. ठीक है, I have our slide is visible to you, where early man had made something, and he is telling that I call my invention the wheel, but so far I have been unable to attract any venture capital. Is the slide visible? Yes, Yes, sir. sir. Yes, sir. है ना? Yes, So sir. what is happening? The basic issue or the basic problem which we are facing, that ideas are coming to our mind. We are sometimes leading to the prototype also, but as we don't know how to propagate it, how to commercialize it, sometimes what is happening, we are giving some name which is not acceptable by the society at the present time, and the idea goes somewhere else. ठीक है, and the innovative that innovative idea which came to your mind is not giving some good response to you. So we will see how we can check the ideas, get some commercial return also. Now, the basic feature of innovation should be based on imagination, not on experience. ठीक है, इनोवेशन जो है उसका बेसिस जो है वो हर समय इंप्रूवमेंट होना चाहिए, इमेजिनेशन होना चाहिए, एक्सपीरियंस नहीं होना चाहिए। 1900 1920 में जब रेडियो बना, तो हमको ये लगा कि एक जगह से हमारा जो वॉइस है वो दूसरी जगह तक जा रहा है, ये कितनी बड़ी चीज है। हमने एक ह्यूमैनिटी के लिए बहुत बड़ा ट्रांजिशन जो है वो ला दिया है, और यही चीज जो है लंबे समय तक डोमिनेट करती रहेगी। 1930s के बाद जो कैथोड रे ट्यूब था, एक ऐसा रेडियो बन गया जिसमें लोगों का पिक्चर भी दिखने लगा। ठीक है, 1930 से ब्लैक एंड व्हाइट सीआरटी निकल गया, कलर सीआरटी निकल गया। ठीक है, एलईडी टीवी आ गया। आज जो है आप जो टेलीविजन यूज करते हो उसकी शुरुआत कहीं 1930 में हुई थी। ठीक है, तो बोलने का जो मतलब है दैट इज कि पुराना जो हमारा एक्सपीरियंस है वो किसी सिस्टम को मेंटेन करने के लिए हेल्प कर सकता है। ठीक है, लेकिन जब तक आपका इमेजिनेशन आउट ऑफ बॉक्स नहीं होगा, आप किसी सिस्टम के इंप्रूवमेंट में नहीं जा सकते। यू हैव टू थिंक विच हैज नॉट बीन इन प्रैक्टिस। ठीक है, जो चीज आज कमर्शियलाइज नहीं हुई है, जो चीज आज प्रैक्टिस नहीं हुई है, अगर आप वो सोच सकते हैं तो ऑटोमेटिकली आप जो सोच रहे हैं उसके लिए वेंचर कैपिटलिस्ट खड़े हैं, आपके आइडिया पे लोग पैसा भी लगाएंगे। और ये सारे जो बड़े बिजनेस आज हमको दिखते हैं, दे हैव स्टार्टेड फ्रॉम स्क्रैचेस ओनली।
ठीक है, जितने भी बड़े बिजनेस आज हमको देखने के लिए मिलते हैं, दे ऑल हैव स्टार्टेड फ्रॉम स्क्रैचेस. ओके, सी दिस इज हाउ टेलीकम्युनिकेशन सिनेरियो डेवलप्ड. पूरी दुनिया के अंदर टेलीकम्युनिकेशन का जो सिनेरियो था वो किस तरीके से डेवलप हुआ. तो पहला जो फोटोग्राफ है जो आपको दिखा रहा है कि ग्राहम बेल जो है, ठीक है, उसने किस तरीके के टेलीफोन और 1880s तक आते आते किस तरीके का आपका टेलीफोन है वो मार्केट में आ गया. ठीक है, जो हम यूज करने लगे, क्रेडल वाले जो फोन है, और वहां से आज जो आप फोन यूज कर रहे हैं उसका इवोल्यूशन. ठीक है, तो जितना आउट ऑफ बॉक्स थिंकिंग फोन के इवोल्यूशन में हमको दिखता गया, आप देखिए हमारी यूटिलिटी भी फोन को लेकर के उतनी बढ़ती गई. ठीक है, एक समय में अगर फोन पे बात हो जाए तो ये बड़ी चीज थी. आज की डेट में लगभग हमारे सारे प्रॉब्लम्स जो है एक सॉल्यूशन के रूप में हमारे पास है, जिसमें हम अपने कैलेंडर से लेकर के डेटा स्टोरेज से लेकर के. वॉइस ब्रेक हो रही है बेटा, ये तो नेटवर्क का इशू है. एनीवेज, ठीक है, तो वी हैव टू थिंक. ये स्लाइड मैं आपको सिर्फ इसलिए दिखाना चाहता हूं कि ये सारी चीजें किसी कॉलेज से, किसी के दिमाग के फितूर से डेवलप हुई है, किसी एक रिमोट एरिया से डेवलप हुई है. ठीक है, और उसके बाद ये कमर्शियलाइज भी हुई और लोगों ने इस पर इन्वेस्टमेंट करना भी शुरू किया. ठीक है, ये सारे आइडियाज के जब आप बेस में जाओगे तो आपको कोई सिरफिरा सा आदमी दिखेगा जिसने कुछ हट करके सोचा. ठीक है, जिसके सोचने का बेसिस जो है वो इमेजिनेशन था, एक्सपीरियंस नहीं था. ठीक है, नाउ सी व्हाट इज हैपनिंग नाउअडेज. अमेज़न क्या क्या चीजें प्रोड्यूस करता है? What all things are produced by Amazon? अमेजोन प्रोड्यूस नहीं करता है सर. नहीं करता ना. ठीक है, Amazon जो है वो अगर आप उसके कोर पे जाओगे तो इट इज अ सॉफ्टवेयर. इज इट? यस सर. यस इट सर. इज अ प्लेटफॉर्म ओनली. यस सर. है ना. और एक ऐसा सॉफ्टवेयर प्लेटफॉर्म जो दुनिया के अंदर सबसे ज्यादा अर्निंग जो है वो ले रहा है. ठीक है, बिजनेस करने के तरीके को Amazon ने चेंज कर दिया, एक सॉफ्टवेयर से रिलेटेड प्लेटफॉर्म बनाया. ऐसा तो नहीं था कि Amazon से पहले दूसरे सॉफ्टवेयर्स नहीं थे या सॉफ्टवेयर लोगों को बनाना नहीं आता था, लेकिन सॉफ्टवेयर और इंटरनेट का एक ऐसा मार्केट Amazon ने डेवलप किया और लोगों के रीच तक पहुंचाया कि Amazon जो है आज के डेट में दुनिया के सबसे ज्यादा अर्न करने वाली कंपनियों में से एक हो गया. ओला कैब्स, ठीक है, कितनी गाड़ियां ओला कैब्स जो है ओन करता है? कुछ भी नहीं सर. सर बहुत कम. कुछ भी नहीं. कुछ भी नहीं. कुछ भी नहीं. बट आज ओला जो है मार्केट में एक बहुत बड़े बिजनेस हब के रूप में आ गया, जो रेंटल कार की सर्विस को प्रोवाइड कर रहा है. ठीक है, मतलब हमने मार्केट में से ही चुना. ठीक है, आपको नेटफ्लिक्स की हिस्ट्री पता है? आपको हाउ द कंपनी नेटफ्लिक्स डेवलप्ड? नो सर. है ना. नेटफ्लिक्स का जो डेवलपर है उसकी एक वीसीडी और डीवीडी रेंटल की शॉप थी. ठीक है, और जो ट्रेडिशनल पैटर्न पे मूवीज या सारी चीजें हैं उसको वो रेंट करता था. ठीक है, उसके दिमाग में एक इनोवेटिव आइडिया आया कि क्यों ना मैं लोगों का सब्सक्रिप्शन लेना चालू करूं और एक जगह से मैं टेलीकास्ट शुरू करूं. ठीक है, और जो मेरे सब्सक्राइबर हो उनको जो चीज देखना हो इस सब्सक्रिप्शन में वो पेमेंट करने के बाद मेरे सब्सक्रिप्शन को देख सकते थे. ओल्ड बिजनेस ही था उसका. पहले वो क्या कर रहा था, सीडी वीसी डीवीडी डीवीडी तो तब था नहीं, बेसिकली जो वीसीआर में लगने वाले कैसेट्स थे उसको वो किराए पर दे रहा था. उसकी जगह पर व्हाट ही स्टार्टेड डूइंग, उसने सारी चीजों को जो है उठा करके अपने सर्वर में रख दिया और बोला कि आप पे करिए और आपको जो चीज देखना है यहां से देख लीजिए. आज नेटफ्लिक्स का मॉडल जो है दुनिया भर में एक बहुत सक्सेसफुल बिजनेस मॉडल है, जो लगभग 172 अलग अलग लैंग्वेजेस में, ठीक है, टेलीकास्ट करता है. ठीक है, और लगभग सारे कस्टमर्स जो हैं वो सेटिस्फाइड है, बिकॉज बहुत वैरायटी ऑफ प्रोग्राम्स के साथ नेटफ्लिक्स जो है दुनिया भर के अंदर एक लीडिंग एंटरटेनमेंट नेटवर्क के रूप में हमको दिखता है. ठीक है, आपको इस स्लाइड पे और दो चीजें दिख रही होंगी. एक स्कैनर दिख रहा होगा आपको. दिस इज अ 2D स्कैनर विच इज यूज्ड बाय एवरी शॉपकीपर. सब जगह पे बारकोड स्कैनिंग होती है ना.
यस सर। यस सर। है ना? Yes, उस sir. बारकोड स्कैनिंग से थोड़ा सा अगर हम चेंज करें, देखिए द 3D स्कैनर्स केम इनटू एग्जिस्टेंस। आपको जो चीज बनवानी है उस 3D स्कैनर में आप स्कैन करवा दीजिए, जैसा आपने स्कैन करवाया है उस तरीके का मॉडल जो है डेवलप करके आपको दे दे रहा है। थिंक अबाउट द फ्यूचर। फ्यूचर को ट्रांसफॉर्म जब करेगी चीजें, ठीक है, तो बहुत से एग्जिस्टिंग प्रैक्टिसेस बंद हो जाएंगे। आप देखिए तेजी से, कभी आपने सोचा था ऑनलाइन एजुकेशन जो है वो आपके इतने करीब आ जाएगा, आप इतने आसानी से इसको यूज करके अपनी पढ़ाई आगे बढ़ा पाएंगे? बट जो ट्रेंड है आज की डेट में बहुत तेजी से चेंज होते हैं। जिस आदमी ने ये ढूंढ लिया कि क्या चेंजेस होंगे और उसमें किस तरीके का मैं इनोवेट करूं जो कि कमर्शियलाइज हो सकता है, ठीक है, वो अरबों खरबों रुपए जो है 2-4 साल में कमा लेता है। ठीक है, दिस इज द मार्केट। एक समय में मार्केट जो है इट वाज एंटायरली रिसोर्स बेस्ड। जिसके पास पैसा होता था वही बिजनेस कर सकता था। आज की डेट में द बिजनेस आर कंसेप्ट बेस्ड। आपके पास इनोवेटिव आइडिया है, 1000 लोग हैं रिसोर्स लगाने के लिए, आप उनका पैसा उनको रिटर्न करिए और अपना जो बेनिफिट है वो उसमें से स्कीम आउट कर लीजिए। ठीक है, तो दिस इज हाउ द प्रेजेंट बिजनेस मॉडल्स आर बेस्ड। जितनी भी बड़ी कंपनियां आज दुनिया भर के अंदर काम कर रही हैं, ये अब ट्रेडिशनल व्यू से थोड़ा ऊपर उठ करके, ठीक है, कुछ कंसेप्ट पर काम करना शुरू कर दिए। सी, जो पुरानी कारें हैं, ठीक है, जनरल मोटर्स जैसी कंपनियां, ठीक है, आज उनके लिए सबसे बड़ा थ्रेट क्या कोई दूसरी कंपनी है? सर इलेक्ट्रिक कंपनीज टेस्ला जैसी। टेस्ला जैसे, ठीक है, टेस्ला के साथ गूगल जैसे, ठीक है, व्हाई दे आर थ्रेट? सर बिकॉज आने वाले टाइम में सारे पेट्रोलियम और गैसेस लिमिटेड हो जाएंगे। और So, कुछ बड़ा consumer- सोचिए, और कुछ सोचिए बेटा, बड़ा फॉसिल सर फ्यूल और ये ऑटोमेशन सारी चीजों को। विदाउट ड्राइवर ऑटोमेशन। सर सभी बिना एक पर्टिकुलर प्रोग्राम पे रन होगे सर। सोलर एनर्जी Yes. ऐसी चीज है सर जो कभी खत्म नहीं हो सकती। सोलर एनर्जी तो बेटा सिर्फ टेस्ला का जो वॉल है, मतलब सिर्फ एनर्जी प्रोवाइड करने की बात कर रही है। आज सारी बड़ी कार मैन्युफैक्चरिंग कंपनीज के लिए ये जो गूगल की टेक्नोलॉजी है ना, लिडार, लाइट डिटेक्शन एंड रेंजिंग, ये एक बहुत बड़ा ट्रेंड बन गई है। बिकॉज गूगल ने सक्सेसफुली ड्राइवरलेस कार बना ली है और बना करके ये यूएस के सड़कों में दौड़ाना शुरू कर दिया। जब मैं ये प्रेजेंटेशन खत्म करूं तो आप गूगल पे जाइए, हाउ दिस lidar टेक्नोलॉजी इज ट्रांसफॉर्मिंग द कार सेगमेंट। ठीक है, पुरानी कार मैन्युफैक्चरिंग की बड़ी कंपनियां की ऑडी, ठीक है, जिनके नाम आपने सुने होंगे, उन सब के लिए आज lidar टेक्नोलॉजी है। ठीक है, एंड दिस, अब आप सोचिए कितना डिफरेंस आएगा। अब आपको ड्राइविंग लाइसेंस की जरूरत नहीं पड़ेगी। एक कार ओनर को ड्राइविंग लाइसेंस की जरूरत नहीं, क्यों? उसे ड्राइव ही नहीं करना है कार। आप अपना जगह जो है सिलेक्ट कर लीजिए, कहां पर जाना है, कहां से जाना है, सिलेक्ट कर लीजिए, ऑटो ड्राइव होकर के गाड़ी जो है आपकी एक जगह से दूसरी जगह पर चले जा रही है। सी हाउ द एंटायर टेक्नोलॉजी इज ट्रांसफॉर्मिंग। ठीक है, तो अगर हम इस पर्टिकुलर समय पर अपना जो दिमाग है उसको इनोवेशन की तरफ नहीं लेकर के जाते तो हम बहुत दूर छूट जाएंगे, बहुत पीछे छूट जाएंगे और यहां से वापस आना पॉसिबल नहीं होगा। ट्रेडिशनल जॉब्स आने वाले 10 सालों में, 20 सालों में मार्केट के अंदर नहीं बचेंगी। जो गवर्नेंस के मॉडल हैं, आज इतने जो एम्प्लॉयज लगते हैं गवर्नमेंट को चलाने के लिए, ऑर्गेनाइजेशंस को चलाने के लिए, वो लोग इतने सारे अब नहीं लगेंगे। सारी चीजें जो है इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी बेस्ड, इंटेलिजेंस बेस्ड हो जा रही है। ठीक है, तो ऐसे समय पर अगर आप कुछ क्रिएटिव नहीं कर रहे हैं तो आप दुनिया से 20 साल पीछे। ठीक है, आज लगभग सारे जो ऑर्गेनाइजेशंस हैं, सारे जो एजुकेशनल इंस्टीट्यूशंस हैं, दे हैव स्टार्टेड टॉकिंग अबाउट इनोवेशन। ठीक है, पिछले 2 सालों में इंडियन गवर्नमेंट भी बहुत एग्रेसिव हुई इनोवेशन को लेकर के, और उसने स्कूल कॉलेजों में इनोवेटिव आइडिया प्रमोट करने के लिए बहुत सारे सेल बनाने की बात की। क्यों ऐसा हो रहा है इसको पहले समझते हैं, इसकी हिस्ट्री को देखते हैं। आपको शायद पता हो कि भारत जो है वो चाइना और यूएस के बाद तीसरा बड़ा नेशन है जहां पर सबसे ज्यादा नंबर ऑफ ग्रेजुएट्स जो हैं वो प्रोड्यूस होते हैं।
India is the third largest nation of the world which produces educated graduates. But the basic problem which we are facing is that 80% of our educated graduates are not fit for industry. 80% नेस्कॉम की रिपोर्ट है, आप देखिएगा 75 से 80% पढ़े लिखे लोग जो है उनको इंडस्ट्री जो है अनफिट पा रही है अपने फ्यूचर प्रोजेक्ट्स को, जिस तरीके का थॉट उनके पास है, अगला बिजनेस आइडिया, जिस तरीके के मॉडल पे वो काम कराना चाह रहे हैं, वहां पर अपने आप को वो अनफिट पा रही है। ठीक, अब जो पुराना पढ़ाई है जहां पर हम चीजों को रट लेते थे, एग्जाम दे करके पास होते थे, ठीक है, उस तरीके की पढ़ाई जो है वो बहुत ज्यादा दूर तक आपको नहीं ले जा पाएगी। और आपको शायद पता हो बेटा कि 2030 तक इंडिया विल बी द यंगेस्ट नेशन ऑफ द वर्ल्ड। हमारा एवरेज एज जो है वो 20 ईयर्स हो जाएगा पूरे देश का, ठीक है, और पूरी दुनिया जो इंडिया से एक सॉलिड लीडरशिप की डिमांड करेगी। ठीक है, तो क्या हमारे लोगों में इतनी काबिलियत है कि वो पूरी दुनिया को लीड कर सके? द टाइप ऑफ एजुकेशन जो एजुकेशन आज हम ले रहे हैं, क्या वो एजुकेशन इतना अच्छा है कि दुनिया की जो लीडिंग कंट्रीज हैं, जो हमसे पीछे होगी आने वाले 10 सालों में, उनकी कंपनियों में लीड रोल के लिए क्या हम तैयार हो रहे हैं? दिस इज द बेसिक प्रॉब्लम विच अवर एमएचआरडी इज फेसिंग। ठीक है, हमारा ह्यूमन रिसोर्स डेवलपमेंट का जो मिनिस्ट्री है उसके सामने एक इतना बड़ा क्वेश्चन है कि आने वाले 10 सालों में जो इंडिया को चांस मिलेगा अपने आप को एक दुनिया के लीडरशिप के रोल में दिखाने का, क्या उसको ग्रैब करने के लायक हमारे प्रेजेंट स्टूडेंट्स में जो है काबिलियत है? और जब हम इसका सर्वे करते हैं, जब हम इस पे रिसर्च करते हैं, तो हमको समझ में आता है कि कहीं ना कहीं पर हमारी काबिलियत जो है वो दिन ब दिन कम हो रही है। अब बेसिक एजुकेशनल सिस्टम इज हैविंग इज दैट हम एक लिखी लिखाई चीज को पढ़ते हैं, एग्जाम देते हैं और पास हो जाते हैं, बट क्रिएटिविटी का जो कंटेंट हमारे अंदर पढ़ाई के बाद आ जाना चाहिए, जो ट्रांसफॉर्मेशन हमारे दिमाग में हो जाना चाहिए एक पढ़ाई कंप्लीट करने के बाद, वो चीज नहीं हो पा रही है। ठीक है, तो अब हम इनोवेशन की बात करते हैं कि किस तरीके से जो एमएचआरडी का ये प्रॉब्लम है, जो 10 साल के बाद का वो सोच रही है, इस प्रॉब्लम को हम इनोवेशन से दूर कर सकते हैं। ठीक है, तो इफ यू टॉक अबाउट इनोवेशन, इनोवेशन का बेसिस क्या है? हमारे दिमाग में थाउजेंड्स ऑफ आइडियाज कम टू अवर माइंड, जैसे पॉपकॉर्न फूटता है ना, ठीक है, उस तरीके से हमारे दिमाग में भी इनोवेटिव आइडियाज जो है वो कंटिन्यूअसली आते रहते हैं। द बेसिक प्रॉब्लम इज दैट हम अपने दिमाग पे भरोसा कर लेते हैं कि ये आइडिया हमारे दिमाग में हर समय के लिए रह जाएगा। ठीक है, और क्योंकि ये हमारे दिमाग का टैसिट पार्ट होता है, तो जैसे ही कोई नया स्टिमुलस हमारा दिमाग रिसीव करता है, पुराने आइडियाज जो है वो हमारे दिमाग से चले जाते हैं। ठीक है, तो सबसे पहला जो दिक्कत है इनोवेशन के लिए वो ये है कि दिमाग पर भरोसा करके छोड़ दोगे कि आपके दिमाग में आइडियाज आते रहेंगे और आपको ये आइडियाज याद रहेंगे और आप इसको ट्रांसफॉर्म कर पाओगे, तो ये पॉसिबल नहीं है। द मोमेंट अ आइडिया कम्स टू योर माइंड, यू हैव टू थिंक अबाउट इट्स कोडिफिकेशन। हमारे दिमाग जो है, हमारा जो नॉलेज है वो दो तरीके से होता है ना, टैसिट नॉलेज होता है और एक्सप्लिसिट होता है, कोडिफाइड होता है। तो हम क्या करेंगे, तुरंत जो है उसका कोडिफिकेशन करने की कोशिश करेंगे, और जैसे ही कोडिफाई होता है तो हम ये वेरीफाई करेंगे कि क्या मैं जो सोच रहा हूं उससे दूसरे जो लोग हैं वो बेनिफिटेड हो सकते हैं। ठीक है, वेरिफिकेशन का प्रोसेस कैसे होगा? मैं एक सोशल गैदरिंग में जाकर के पूछता हूँ, दिस इज द आइडिया विच इज कमिंग टू माई माइंड, डू यू थिंक इट इज फिजिबल? एंड इफ यू फाइंड दैट the idea which is coming to your mind is feasible, you can apply that idea to commercialize. ये प्रोसेस के फॉर्म में भी हो सकता है और प्रोडक्ट के फॉर्म में भी हो सकता है। ठीक है, छोटे छोटे आइडियाज लोगों के दिमाग में आए थे। ड्रिप फार्मिंग का आइडिया, आप देखिए इजराइल दुनिया के अंदर फार्मिंग में कहां से कहां चला गया। उसने पौधों के जड़ों पर ड्रिप लगा दिया,
इतने कम पानी वाला एक देश जो है सबसे ज्यादा पैदावार देना चालू कर दिया दुनिया के अंदर, ठीक है। वर्टिकल फार्मिंग का जो टेक्निक था, क्योंकि लोगों ने छोटे छोटे जो है अपार्टमेंट्स में लोग रहना चालू किए, जमीन से 10वें माले पे 20वें माले पे उनका घर हो गया। थिंक हाउ दिस वर्टिकल गार्डनिंग, ठीक है, हैज चेंज द वे वी आर लिविंग। आज 10वें फ्लोर पर भी आप अपना गार्डन लगा सकते हैं वर्टिकल जो है गार्डन के आइडियाज को यूज करके, और आपका घर जो है उतनी ग्रीनरी के साथ हो सकता है जितना आप जमीन पे रहते हैं तो होता, ठीक है। ये सारी चीजें बहुत बेसिक से इनोवेशन है, और इस इनोवेशन जिसने वर्टिकल गार्डन का आइडिया लगाया होगा उसने अरबों रुपए का खर्च नहीं किया होगा, बट हाँ उसके आइडिया पे अब अरबों रुपए लग गए। बहुत सी कंपनियां जो है वर्टिकल गार्डन जो है वो लोगों के घर पे बना के देना शुरू कर दी है, ठीक है। हमारे भारत में लोग जो है पहले टायर को काट करके, बॉटल को काट करके उसमें पौधा लगा करके लटका के रखते थे, बट उसके बड़े पेस पर जिसने उसको सोचा, ठीक है, ही हैज ट्रांसफॉर्म हिज आइडिया इनटू अ कमर्शियल वन। तो मैं आप सभी स्टूडेंट को ये बताना चाहता हूं बेटा कि द मोमेंट अ आइडिया इज कमिंग टू यू, फर्स्ट नोट इट डाउन। Any idea which is coming to your mind, keep a diary and note down your idea. आप जैसे ही अपने आइडिया को नोट कर सकते हो, नोट करने के बाद यू ट्राई टू वेरीफाई इट। अगर आपके आसपास के लोग सहमति जताते हैं कि आपकी आइडिया जो है वो फिजिबल है, आप उसको अप्लाई करने के प्रोसेस में आ सकते हो, आप उसको कोई एक प्रोसेस के रूप में या एक फिनिश प्रोडक्ट के रूप में कन्वर्ट कर सकते हो। अगर लोग सहमति नहीं देते कि हाँ ये आइडिया जो है फिजिबल नहीं हो रहा है या कभी फिजिबल नहीं हो सकता, आपका इमेजिनेशन जो है वो फिजिबल नहीं हो सकता, तब आपको रीथिंक करना पड़ेगा कि क्या किस तरीके से मैं इसको फिजिबल बना सकता हूं, ठीक है। नाउ इनोवेशन दो तरीके से हो सकता है। अभी आप लोगों के एक कंपटीशन के लिए भी बोला गया है। सी व्हेन वी थिंक अबाउट इनोवेशन, दो तरीके से इनोवेशन को किया जा सकता है। एक है मार्केट पुल इनोवेशन और दूसरा है टेक्नोलॉजी पुश, ठीक है। तो मार्केट पुल अगर इनोवेशन की आप बात करते हो, ठीक है, तो आपको वो चीज बनाना पड़ेगा जो लोगों की जरूरत है, ठीक है। लोगों की जरूरत के लिए क्या करना पड़ेगा आपको? यू हैव टू आइडेंटिफाई नीड। आप नीड आइडेंटिफाई करते जाओ और उसको फुलफिल करते जाओ, आपको पीछे मुड़ के देखने की जरूरत नहीं है, आपका प्रोडक्ट जो है बिकते जाएगा। जितने अच्छे से नीड आइडेंटिफाई करोगे उतना ज्यादा अच्छा जो है आपका प्रोडक्ट में मार्केट बेस बनेगा। फॉर एग्जांपल बहुत बड़ा बेस जो है वो आईफोन यूजर्स का था। आईफोन ने एक समय लोगों की नीड को चेक करते हुए, क्योंकि वो जिस ओरिजिन कंट्री का प्रोडक्ट था वहां के नीड को रिकॉग्नाइज करके अपने प्रोडक्ट को बनाना चालू किया। आप देखिए उससे बहुत कम कीमत में एक प्लेटफॉर्म आया एंड्रॉइड, ठीक है, और एंड्रॉइड ने जो किया वो एक हिस्ट्री है। कम कीमत में इतने ज्यादा फीचर्स आपके मोबाइल फोन तक एंड्रॉइड ने पहुंचा दिए। नीड रिकॉग्निशन किया, एप्लीकेशन बनाया, प्लेटफॉर्म पे डाला, प्रोडक्ट जो है वो बिकना शुरू हो गया। दूसरा तरीका जो है इनोवेशन का वो होता है दैट इज टेक्नोलॉजी पोस्ट इनोवेशन। आपको लगता है कि आने वाले 10 सालों में ये चेंज होगा, आप एक प्रोडक्ट बनाए, लोगों में अवेयरनेस लाए उस प्रोडक्ट को या प्रोसेस को यूज करने के बारे में, और अवेयरनेस ला करके आप उस प्रोडक्ट को सेल करना शुरू करें, ठीक है। तो दो तरीके से आप जो है प्रोडक्ट के लिए जा सकते हैं, या तो मार्केट की नीड को आइडेंटिफाई करके मार्केट पुल इनोवेशन की बात कर सकते हैं, या तो फिर टेक्नोलॉजी जो है आप डेवलप करके उसको पुश कर सकते हैं मार्केट के अंदर, ठीक है। टेक्नोलॉजी पुश करेंगे, एक दिक्कत क्या रहेगा, अगर आपकी टेक्नोलॉजी चल गई, आप उस टेक्नोलॉजी के यूनिक सप्लायर बन जाएंगे और आपकी जो प्रॉफिटेबिलिटी है, ठीक है, वो अनकंपेरेबल हो जाएगी, ठीक है। मार्केट पुल इनोवेशन पे काम करोगे, जैसे ही आप कुछ बनाओगे लोग उसको कॉपी करेंगे, ठीक है, और जिस मार्केट के नीड को आप सेटिस्फाई करने के लिए प्रोडक्ट बनाओगे का स्कोप भी उसी मार्केट के लायक रह जाएगा, ठीक है। नाउ देयर आर 4 बेसिक टाइप्स ऑफ इनोवेशन। कोई एग्जिस्टिंग प्रोडक्ट में अगर मैं थोड़ा सा इनोवेशन करता हूं तो उसको हम इंक्रीमेंटल इनोवेशन के रूप में देखते हैं, ठीक है। अगर मैं उसमें कुछ छोटा मोटा चेंज लेकर के आता हूं, फॉर एग्जांपल जो डायलर फोन थे
डायलर फोन को हटा करके मैंने जो है उसमें कुछ ऐसा प्रोसेस लगा दिया कि मैं उसमें जो है बटन से डायल कर पाऊं, ठीक है, तो आर्किटेक्चरल इनोवेशन में हो जो है कैन बी सेड एज आर्किटेक्चरल इनोवेशन। तो यहाँ पर जो चेंजेस है एग्जिस्टिंग प्रैक्टिस में, इनोवेटिव प्रैक्टिस में, दे आर माइनर, वेयर एज when we talk about something novel or something new to the market, ठीक है, there are two types of innovation for that also. First one is modular change, ठीक है, अपने आप में existing practice को एक नए तरीके का practice जो है वो बना देना, ठीक है, for example using just in time, सारे रिसोर्सेज वही थे लेकिन उसको यूज करने के तरीके में एक बहुत बड़ा चेंज ला देना, या फिर कुछ रेडिकल इनोवेशन, रोबोटिक्स का यूज करने लगना, ठीक है। आपको पता होगा देयर व्हेन दिस टोयोटा सेट अप इट्स फर्स्ट प्लांट इन ओहियो यूएसए, व्हाट दे डिड, उन्होंने जो ह्यूमन रिसोर्स है उसका यूज इतना कम कर दिया कि यूएस में जो प्रोडक्शन कॉस्ट थी उनके होंडा की जो कारें थी, टोयोटा की जो कारें थी, उसका इतना मिनिमाइज हो गया कि उनकी कार का और यूएस में जो कंपनियां उस समय एस्टेब्लिश थी, डैमलर क्रिसलर जैसी या जनरल मोटर्स जैसी, उनकी कारों के बीच का जो डिफरेंस है वो बहुत ज्यादा हो गया, ठीक है। और एक एस्टेब्लिश्ड मार्केट में, ठीक है, यूएस के एक जापानीज कंपनी जो है वो एंटर की एंड इट हैज रिप्लेस्ड द एंटायर पैसेंजर कार सेगमेंट ऑफ यूएस। जो कम कीमत की जो कार सेगमेंट थी यूएस की, उसको पूरी तरीके से उठा करके रिप्लेस कर दिया, ठीक है। दिस इज समथिंग विच इनोवेशन कैन डू फॉर यू, ठीक है, बट यू हैव टू थिंक हाउ इट कैन बी इंप्लीमेंटेड टू अ मार्केट। नाउ कॉलेज लेवल पे जब हम इनोवेशन की बात करते हैं बेटा, तो बहुत दूर तक जाने की जरूरत नहीं है। आपको मैं कुछ अच्छे एग्जांपल्स देता हूं कि किस तरीके से हम इनोवेशन के साथ जुड़े और कैसे छोटे छोटे इनोवेशंस भी लाइफ को ट्रांसफॉर्म कर सकते हैं, ठीक है। सी, अर्थ इज एस्टिमेटेड टू बी 4.54 बिलियन ईयर्स ओल्ड, ठीक है। कितने ईयर ओल्ड हम अर्थ का एस्टिमेशन करते हैं? 5.54 बिलियन ईयर का। तो हमारा एक्सपीरियंस एज अ ह्यूमन बीइंग, एज अ स्पीशीज इन दिस अर्थ इज ऑफ 4.54 बिलियन ईयर्स, ठीक है। चाहे हमने अपनी जो ओरिजिन जो है वो कहीं से शुरू की हो, लेकिन आज जिस जगह पर हम हैं उस जगह तक पहुंचने के लिए हमने 5.54 ईयर्स जो है इस दुनिया में बिताया है। और हमने जो भी चीजें देखी हैं या सीखी है वो हमारे आसपास की चीजों से उठा करके हमने कॉपी करने की कोशिश की। आई हैव टेकन सम गुड एग्जांपल्स। सी, एक बर्ड विजिबल है आपको, किंगफिशर? यस सर। यस सर। है ना? ये जो बर्ड है, जब जापान बुलेट ट्रेन के इन्वेंशन में लगा हुआ था तो उसका सबसे बड़ा जो बेसिक प्रॉब्लम आ रहा था, वो प्रॉब्लम था कि जापान के पास एक ऐसा मॉडल नहीं था ट्रेन की इंजन को बनाने के लिए जो उतनी स्पीड में चल सके, ठीक है। द बेसिक प्रॉब्लम फेस्ड बाय द डिजाइनर्स ऑफ बुलेट ट्रेन वाज कि उसका जो इंजन था, ठीक है, वो उस स्पीड पे लाइन पर, ट्रैक पर जो है अपने आप को बनाए नहीं रख पा रहा था और डिरेलमेंट हो रहे थे, ठीक है। तो एक इंस्पिरेशन जो है इनको मिला किंगफिशर बर्ड से। उन्होंने देखा कि किंगफिशर बर्ड जो है वो हवा से पानी में जब उतरती है तो दो अलग अलग जो चीजें हैं, पानी एक अलग चीज हो गई, हवा एक अलग चीज हो गया, लेकिन अपने शेप के कारण जो पानी है उसमें मिनिमम जो है डिस्प्लेसमेंट हो रहा है, ठीक है। तो किंगफिशर का जो हेड था उसको इन्होंने कॉपी किया अपने बुलेट ट्रेन की इंजन का जो फ्रंट पोजीशन है उसको बनाने के लिए, ठीक है। और एक नेचर से इन्होंने उठा करके कॉपी किया एक ऐसे टेक्निकल प्रोडक्ट में जो 800 किलोमीटर की स्पीड पर दौड़ने वाली ट्रेन के रूप में आज हमको दिख रही है। आप कहीं पर भी पढ़ेंगे तो आपको पता चलेगा कि अ बर्ड वाचिंग इंजीनियर, ठीक है, जो कि जापानीज कंपनी में काम करता था, ठीक है, उसको अपनी ट्रेन के लिए जो उसका सिर था उसका मोटिवेशन कहां से मिला? बर्ड से मिला। दैट मीन्स हम नेचर से भी इंस्पिरेशन ले सकते हैं प्रोडक्ट्स को डेवलप करने के लिए। आज एलईडी ने पुराने सारे मार्केट्स को चेंज कर दिया,
जितने भी तरीके के बल्ब्स आज से पहले या जो इलेक्ट्रिकल जो लाइट के लिए जो भी चीजें बनी थी, उनकी जगह पर एलईडी जो है वो मिनिमम इलेक्ट्रिसिटी के साथ मैक्सिमम जो है लाइट प्रोड्यूस करने वाले प्रोडक्ट के रूप में हमको दिखने लगा। और लगभग सारी जगह से जितनी भी ट्रेडिशनल लाइटिंग थी उसको रिप्लेस करके आज हम एलईडी यूज करने लग गए। ठीक है, शुरुआत में ये बोला गया कि एलईडी जो है उसके नुकसान होंगे, लेकिन आज हम उसमें भी कुछ इस तरीके की टेक्नोलॉजी यूज करने लगे कि जिससे हमारे आंखों पर कम से कम नुकसान हो। ठीक है, किसी की कल्पना ही थी, ठीक है, जिसने सोचा था कि इंसान जो है वो प्लेन हवा में उड़ सकता है। ठीक है, जो आपको फिगर दिख रहा है दैट वाज अ बेसिक ड्राइंग विच वाज मेड बाय लियोनार्डो डा विंची। उसने उठा करके ये ड्राइंग बनाया 1480s में। सोचिए कितने साल पहले उसने एक प्लेन का मॉडल बनाया, एक ड्राइंग बनाया, ऐसे पंख लगा करके लोग उड़ सकते हैं। ठीक है, और नो डाउट ये कभी उड़ा नहीं। ठीक है, लेकिन उसकी ड्राइंग आज भी एक बेसिक ड्राइंग के रूप में यूज की जाती है। ठीक है, एविएशन इंजीनियरिंग के अंदर उसने ऐसे प्रिंसिपल्स देने के की क्षमता जो है दुनिया के सामने रखी, जो लोगों को ये सोचने पे मजबूर करे कि लोग उड़ भी सकते हैं। उसको साकार होने में भले ही 400 साल लग गए। एविएशन इंडस्ट्री आज की डेट पे एक अच्छे रूप में हमको दिख रही है, बट द थिंग इज कि आप जो भी चीज इनोवेट करते हो वो कहीं ना कहीं पर इस लोकेलिटी के अंदर एक लैंडमार्क के रूप में रुक जाती है। ठीक है, रोबोटिक आर्म्स, ठीक है, किस जगह से उठा करके हमने रोबोटिक आर्म्स की कॉपी की, तो जब आप उसको पढ़ने की कोशिश करोगे तो आपको समझ में आएगा कि रोबोटिक आर्म्स जो कि 21st सेंचुरी का सबसे बड़े ऑटोमेशन के रूप में हमको दिख रहा है, वो कहीं ना कहीं पर हाथी के सूंड से कॉपी की गई एक टेक्नोलॉजी है। ठीक है, जिस तरीके से हाथी के सूंड की बनावट थी उसको कॉपी करके हमने रोबोटिक आर्म्स जो है वो बनाया, और बना करके आज की डेट में इसके साथ व्हाट वी डिड, हमने आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस को क्लब किया, और आज हम रोबोटिक आर्म्स को सारे इंडस्ट्रीज के अंदर यूज करने लग गए। अलग अलग जहां पे ह्यूमन का यूज हमको कम करना था वहां पर हमने ऑटोमेशन जो है करना शुरू कर दिया। देन बहुत सिंपल सा नेचर का एक फंडामेंटल था, दैट वाज कि नेचर में जो भी चीजें एग्जिस्टेंस में आ रही हैं, ठीक है, उनके कैलकुलेशन पर एक मैथमेटिशियन ने एक सीरीज डेवलप कर दिया। फिबोनाची सीरीज पढ़ते हैं ना, दिस एंटायर फिबोनाची सीरीज, ठीक है, जो भी चीजें नेचर में एग्जिस्ट हो रही हैं अगर आप उसके बेसिक्स में जा करके देखने की कोशिश करोगे, वेदर इट इज अ सनफ्लावर, वेदर इट इज आर्किटेक्चर ऑफ डीएनए, ठीक है, चाहे वो किसी फ्लावर, चाहे वो सोलर सिस्टम के अंदर जो है मोशन हो प्लानिटरी बॉडीज का, तो यू विल फाइंड दैट दिस पर्टिकुलर सीरीज, ठीक है, हैज इट्स ओन इम्पैक्ट ऑन द मोशन ऑफ थिंग्स और द रोटेशन ऑफ थिंग्स इन यूनिवर्स। ठीक है, तो इस सीरीज जो है इसको किसी ने इस दुनिया में से ही खींच करके निकाल के लिखा कि हाँ, सारी चीजें जो यहाँ पर डेवलपमेंट में हो रही है, they are based on this particular series, this Fibonacci series. See, why I am giving this examples, the basic idea of giving this example is that when you think about innovation, you must think about simple things. ठीक है, simple things which is in your vicinity, जो आपके आसपास है। कल रात को मैंने इनोवेशन वाला जो आपका ग्रुप है स्टूडेंट्स का, उसमें कुछ शेयर भी किया था। ठीक है, ये बताने के लिए कि बेटा जो लोग इनोवेट करके आज बहुत सक्सेसफुल हुए हैं, उनके पीछे किसी ने अरबों रुपए का खर्च नहीं किया। बहुत सिंपल आइडिया से भी लोगों ने अरबों रुपए जो है अर्न कर लिए। व्हाट दे डिड, दे जस्ट रिकॉग्नाइज द नीड ऑफ द मार्केट। ठीक है, ये नीड एक डायरेक्ट नीड के ऊपर था, जैसे कि हमने कस्टमर से फीडबैक लिया और उसके बेसिस पे नीड रिकॉग्नाइज कर लिया, या फिर हमको ऐसा लगा कि कुछ ऐसी चीज हम बनाए जो मार्केट में सेलेबल होगी, उन्होंने वैसी चीज बनाई, या तो सर्विस के फॉर्म में या तो प्रोडक्ट के फॉर्म में, और वो प्रोडक्ट जो है मार्केट में सेल आउट हो गया। ठीक है, इनोवेशन को हम दो तरीके से देख सकते हैं, प्रोसेस इनोवेशन या प्रोडक्ट इनोवेशन। आप देखेंगे प्रोसेस इनोवेशन में सबसे ऊपर वाला जो फोटोग्राफ है दैट इज ऑफ पैकर्ड मोटर प्लांट। ठीक है, जहां पर लगभग सारे
स्टूडेंट्स सारे जो लोग हैं वो एक स्टैब्लिश जगह पर ला करके प्रोडक्ट को फिक्स करके कार बना रहे हैं। वहां से जो उसका नेक्स्ट फेज था जहां पर असेंबली लाइन के रूप में आप कार मैन्युफैक्चरिंग को देख सकते हो, और आज की डेट में कन्वेयर्स जो है वो यूज हो रहे हैं। सो प्रोडक्ट टेक्नोलॉजी जो मैन्युफैक्चरिंग की टेक्नोलॉजी है उसमें भी बहुत सारा इनोवेशन हुआ। ठीक है, स्टेशन जो मैन्युफैक्चरिंग फैसिलिटी थी वहां से लेकर के कन्वेराइजेशन तक, उसी तरीके से जो हमारा प्रोडक्ट है उसमें भी बहुत सारा इनोवेशन हुआ। आप एक पुरानी गाड़ी के साइड में एक और पिक जो देख रहे हैं दैट इज ऑफ अ न्यू कार। ठीक है, जो ये बताता है कि देयर इज सम इनोवेशन इन प्रोडक्ट मार्केट आल्सो। सो what you have to do is you have just to cater customer need as market lead। अगर आपको एक अच्छा इनोवेशन करना है, अगर आपको एक फिजिबल इनोवेशन करना है, तो आपको सिर्फ इतना सा करना है कि यू हैव टू आइडेंटिफाई कस्टमर नीड। आप इस कस्टमर नीड को समझ जाए, और अगर आप इस नीड को एक्सेस कर सकते हैं तो आपको मार्केट लीड जो है अपने आप मिल जाएगा। ठीक है, पतंजलि इज अ वेरी गुड इंडियन एग्जाम्पल of how Patanjali has transformed our need into his business। हमारे डे टू डे नीड को एक इतने बड़े बिजनेस में रामदेव बाबा ने किस तरीके से कन्वर्ट किया, इट इज अ हिस्टोरिक एग्जाम्पल। कई बड़े मल्टीनेशनल्स की हालत खराब कर दी ट्रेडिशनल प्रोडक्ट बना करके, कम कीमत के प्रोडक्ट बना करके, जो कि इंडियन माइंडसेट के करीब पहुंच रहा था। और जब आप इसमें भी बहुत ज्यादा अंदर जाओगे तो आपको पता चलेगा कि रामदेव बाबा के ब्रांड के नीचे भी बहुत से ऐसी चीजें बिकती है जो रामदेव बाबा डायरेक्टली मैन्युफैक्चर नहीं करते। ठीक है, देयर आर मैन्युफैक्चरर्स जिनको वो अपने साथ एसोसिएट करके इस प्रोडक्ट को बेच रहे हैं। तो ऐसे आप भी एक मैन्युफैक्चरर हो सकते हो, ऐसे आप भी एक आइडिया करने वाले हो सकते हो, जो कुछ ऐसे प्रोडक्ट के बारे में सोचो जो भविष्य में मार्केटेबल हो। ठीक है, सो for innovation what you have to do is the first thing is need recognition। सबसे पहला जो काम आपको करना है that is recognition of need। अगर आपने अपने आसपास के एरिया में जो चीज आपको लग रहा है कि एक नीड के रूप में दिख रहा है उसको सही तरीके से रिकॉग्नाइज किया, तो उस नीड के फुलफिलमेंट के लिए ऑटोमेटिकली आपके दिमाग में प्रॉमिसिंग आइडियाज जो है वो आना शुरू हो जाएंगे। ठीक है, इफ दिस प्रॉमिसिंग आइडिया इज कमिंग टू योर माइंड, आप क्या करिए, इसको अपने आसपास के जो आपके फ्रेंड सर्कल है, आपकी सोसाइटी है, उनसे जाकर के चेक कराइए, वैलिडेट कराइए, क्या आपको लगता है भविष्य में ये आइडिया कभी डोमिनेट कर सकता है। इफ यस, सिलेक्ट दैट आइडिया। ठीक है, उस आइडिया के सिलेक्शन के बाद आप अपने कॉलेज आ जाइए, आपके जो फैकल्टीज है उनसे मिलिए। ठीक है, और आप उस आइडिया का एक्सपेरिमेंटेशन और वैलिडेशन की बात करिए। इन बीआईटी दुर्ग वी हैव डेवलप्ड अ सेंटर। ठीक है, ये जो हमारा इनोवेशन सेल है, यहाँ पर डॉक्टर संजय गुहा सर है, जिनको सिर्फ स्टूडेंट को अपने आइडियाज को पिच करने के लिए और उसके वैलिडेशन के तरीके को बनाने के लिए ही बोला गया है। और अगर आप सर से आकर के मिलोगे तो आपको बहुत सारा ऐसा तरीका समझ में आएगा जहां पर अगर आपके दिमाग में कोई आइडिया है तो किस तरीके से हम उस पर एक्सपेरिमेंटेशन कर सकते हैं, कहां से इसके लिए हमारे को वेंचर कैपिटलिस्ट मिल सकता है, कहां से इसका वैलिडेशन हो सकता है, अगर आपका कुछ इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी है तो किस तरीके से उसकी पेटेंटिंग हो सकती है, उसकी जानकारी आपको सर दे देंगे। ठीक है, एंड इफ एट ऑल योर आइडिया is a valid idea and it can be commercialized, so we will also help in commercialization of that idea also। हम आपको एक प्लेटफॉर्म भी प्रोवाइड करेंगे जहां से आप अपने आइडिया को कमर्शियलाइज करेंगे। एंड द मोमेंट यू कमर्शियलाइज योर आइडिया, धीरे धीरे आप कस्टमर का फीडबैक लेते जाओगे और आपके प्रोडक्ट में हर दिन इंप्रूवमेंट होना शुरू हो जाएगा। ठीक है, आज ये सेशन लेने के पीछे जो बेसिक मोटिव था वो ये था, क्योंकि आप में से बहुत से लोग इस कंपटीशन में पार्टिसिपेट कर रहे हो इनोवेशन के। इस कंपटीशन में पार्टिसिपेट करने से पहले आप ये ध्यान रखिएगा बेटा कि उन आइडियाज को हम पिच करें जिस